Hello everyone, my name is Sushil. Today I am going to start a series of lectures for the very important topic that is relevant to the maths, that is function. Function, we can say it is very important topic. I will start with the basics of the function and go with the deep of the topic so that we can understand and analyze the things related to the function. So let's get started. The basic thing that I should tell you about the function is what is function. What is function? So for that, there is a unique identity to find any given equation as a function or not is like that. I'm taking an example for that. I'm taking an example for a very well-known curve. We can say parabola. Y square equals to 4ax. Here for that, if I will draw the graph of this curve, this will be like this. Here is the Cartesian plane, x and y. So, but as I was telling you, that what is the function? To identify whether a given function or given equation is a function or curve, because we cannot identify any given, we can say, equation whether it is a function or curve. So for that we have to draw the graph of that given equation. I'm taking the example of single valued function where y is dependent variable and x is independent variable. So that is y is a function of x. So when I will draw this given equation, single valued equation, then this will be like this. So how to identify whether it is a curve or function? Simply I will draw a line parallel to the y-axis in whole domain of a given equation. If that line is intersecting at any point, at 2 points of that given equation, then this will be called curve. And if I will take the example of any other equation, y is equals to mx plus c, I'm taking the simple example. Sorry guys, yx. Here this is Cartesian plane. The graph of this given equation will be like this. So I have to identify, or we can say we have to identify whether it is a curve or function. The simple trick is that in the whole domain of this function, we have to draw a line parallel to the y-axis. If at any point, if there is two intersection points, then that will be called curve. And if there is only one intersection, then it will be called as function. We can say at each and every point in the whole domain, or for the whole all the values of x, there will be only one value of y. So this is called function. So basic definition of the function is, for each and every value of x, there will be only one value of y. This is the basic definition of function. So अभी यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे. इज इक्वल टू एक्स बाई, ये कार्टेशियन प्लेन है. यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, ठीक है. और दूसरा एग्जांपल इस तरह से, ये इस तरह से ले लिया, ठीक है. मैं ले चुका हूँ ये, ठीक है. ये ले लिया y इज इक्वल टू एक्स, ओके. तीसरा मैं ले लिया इस तरह से, ठीक है. दो एग्जांपल्स बहुत हैं, मैं ये दो एग्जांपल्स ले लिया, ठीक है. अब इसमें मैं बोलूँ इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा. डोमेन यहाँ से लेके ए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मिनिमम पॉइंट से लेके मैक्सिमम पॉइंट तक ही लाई करेगा, ठीक है. तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज़, ग्राफ जहाँ से यहाँ तक लाई करता है उसे कहते हैं डोमेन, ठीक है. तो डोमेन क्या हो जाएगा, ए टू बी, ओके. यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ले लिया मैंने. क्यों क्लोज ब्रैकेट इसकी वजह से ले लिया है, क्योंकि ए और बी इंक्लूडेड है, ठीक है. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इस तरह से कर दे रहा हूँ, ए और बी इंक्लूडेड है, ठीक है. और रेंज की बात क्या होगी, यहाँ पे ये होगा रेंज, ओके. ये हो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा एफ बी, ओके. ये रेंज हो जाएगा. तो रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है. सो एक्चुअली में
ग्राफ जहाँ से जहाँ तक लाई करने वाला है कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से जहाँ तक लाई करेगा तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जितना भी वैल्यूज़ होगा एक्स का उसे डोमेन कहते हैं, और बाई जो इसका बाई के वैल्यूज़ होगा उसके कहते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। अभी यहाँ पे मैं इसे इंटरवल्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एफ ए एफ बी के बीच में यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऐसे ही ए और बी के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो इस तरह से मैं इसकी वजह से लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पर मुझे एक चीज़ बोलना है, ये फंक्शन है कि कर्व है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक वर्टिकल लाइन सिंपली ड्रॉ करूँगा पूरी डोमेन में। अभी तुम बोलोगे कि वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ की मैंने, तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ की है तो यहाँ पे 3 मिल जा रहे हैं मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ किया फिर 1 मिल जा रहा है। तो कहीं पे भी ड्रॉ करने पे अगर मुझे एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जा रहा है ना, तो वो फंक्शन वो कर्व होगा, ठीक है, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो मैं इस तरह से इसे मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो ये कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू द बाई एक्सिस, इफ आई एम गेटिंग intersection points, number of intersection points greater than 1, then we can say that this will not be a function, this will be a curve, okay. So here this is curve, okay. यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इसका डोमेन क्या है, डोमेन यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, ये ए बी, डोमेन यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, और रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये सी पॉइंट है। सो रेंज यहाँ पे एफ सी, ओके, ये एफ बी, और रेंज एफ बी, ओके। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा जहाँ से जहाँ तक इसका ग्राफ लाई कर रहा है कंटिन्यूसली, उसे कहते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी ए टू सी, ओके, ए टू सी, ए और सी, सॉरी ए टू बी, ए टू बी, ओके, ए टू बी होगा, ठीक है। ध्यान देना ए और बी दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो ए पे वैल्यू है इसकी एफ ए, ओके, एफ ए, और सी पे वैल्यू एफ सी, ओके। अभी यहाँ पे रेंज क्या होगी, रेंज भी कैसे, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होने वाली है, रेंज होगी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ द बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके। ये बाई इक्वल टू एफ एक्स ही तो है, मैंने माना है, अज्यूम किया, ठीक है। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ सी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ वी, ओके। सो क्लोज ब्रैकेट कर दिया मैंने। क्लोज ब्रैकेट इसकी वजह से किया है क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब तुम सोचोगे यहाँ पे एफ ए क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि एफ ए जो होता है एफ सी से ज़्यादा है, बड़ा है ना, ऊपर में बाई वैल्यू ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे तो ये बात देखना, हमें डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, क्या होता है मैंने, ठीक है। डोमेन और रेंज क्लियर हो गया, तो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे चूज़ करना है कि ये फंक्शन है कि कर्व है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तब भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज ए कर्व, ओके। यहाँ से मैं सिंपली कह सकता हूँ ये कर्व है। आई होप इट इज़ क्लियर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ओके। सो यहाँ से डोमेन क्या है, रेंज क्या है, मैं बता चुका, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ एग्जांपल सॉल्व लूँगा जिससे थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाएगा डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ले रहा हूँ, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ओके, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ओके। I hope it is clear. You can understand my handwriting. I am writing a little bit fast. Okay. यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन लिया बाई दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। सो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक ग्राफ, एक किसी बाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसको मैंने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है, ओके। सो ओके, इस तरह से डिफाइन किया है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ये इस तरह से डिफाइन किया। सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ए है, ये बी है, ओके, ये बी है। उसके बाद में ये एरो लगा दिया मैंने, एरो की जगह मैं यहाँ पे कुछ और यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं खाली गोला यूज़ कर सकता हूँ, सर्कल जैसा कुछ ऐसे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये इस तरह से मान ले रहा हूँ, ठीक है। ए टू बी है, ये है सी डी, ओके,
ये है E, ये है F, ओके, ये G है, ये H है, ओके, X बाई, ओके। अभी यहाँ पे इस तरह से मुझे ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ये इस तरह से कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ओके, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज। अब इस ग्राफ को मैं कैसे पढ़ूंगा, ये मान ले रहा हूँ मैं F1 है, ठीक है, ये F1 है, ये है F2, ओके, ये F3, सब में x है ना, सो मैं ये लिख भी दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाऊँ, ये F4x है, ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं दोबारा, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, एक साथ कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे ब्रेक्स हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं इस फंक्शन को दोबारा डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे, सॉरी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, f ऑफ x कैन बी डिफाइंड सच दैट, यहाँ पे f1x है, f1x किस वैल्यूज़ के लिए, a से b के बीच में है ना, a to b, ओके, a से b के बीच में है, देखो a और b, ये f1x ही तो है, और f2x कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, c to d के लिए, ठीक है, c to d, ओके, f3x e to f, ओके, e to f, f4x g to h, ओके। सो मैं इस तरह से डिफाइन कर दिया है फंक्शन को, ठीक है। f y इज इक्वल टू एफ एक्स ही है, लेकिन इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, f1x, f2x, f3x, f4x। यहाँ पे f1x x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में होता है क्या, अब इसमें मैं बोलूँ कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो मैंने बोला था डोमेन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इधर सबसे कम वैल्यू कौन सी है, a है ना। सो यहाँ पे डोमेन क्या होगी, बिलोंग्स टू a से लेके b तक जाएगा, ठीक है, a और b इंक्लूडेड है, a से लेके ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, उस ग्राफ जहाँ जहाँ लाई करेगा सिर्फ वही वैल्यूज x की होंगी, ठीक है, डोमेन में a to b, ओके। अभी क्या किया, f1x क्लियर हो गया, यहाँ पे बीच में गैप है, कोई ग्राफ ही नहीं है, इसका मतलब कोई डोमेन नहीं होगा, ठीक है, b to c के बीच में, c से d के बीच में भी डोमेन होगा। अभी यहाँ पे मैं यूनियन का यूज़ कर रहा हूँ, यूनियन मतलब जोड़ना, यूनियन मतलब प्लस, जोड़ना, एंड, ठीक है, सॉरी और, यूनियन मतलब और, इसका मतलब इतना होगा, उसके बाद में ये भी होगा, उसके बाद में ये भी होगा, उसके बाद में ये भी होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनियन, सो यूनियन c to d, ओके, c to d, ओके। अभी क्या कर रहे हैं, c to d, d और e के बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो वो उसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में यूनियन, इसके बाद में क्या होगा, e to f, ओके, e to f, ओके, e to f, अगेन यूनियन g to h, ओके, f और g के बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है, g to h, ओके। सो इस तरह से ये डोमेन हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, रेंज लिखने वाले हैं, तो रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे रेंज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रेंज क्या होगी, बाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ए पे होगी, ठीक है, एफ ए, ओके, और एफ ए होगी, ये होगी एफ वी, ओके, और एफ वी ये होगी एफ सी, ओके, ये होगी एफ डी, ठीक है, समझ में आता होगा, डी पे एफ डी, ओके। अभी क्या करेंगे, ये सारे के सारे लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये मान ले रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स की एक्स इक्वस टू एफ पे एक्स इक्वस टू जी पे इसकी सेम वैल्यू है, ठीक है, एफ जी इज इक्वस टू एफ एफ, ओके। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसे रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा क्लियरली लिख दे रहा हूँ, या मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जूम कर ले रहा हूँ, जो वैल्यू है इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एफ जी इज इक्वल टू एफ एफ, ओके। एफ एक्चुअली में एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये समझ लेना एफ एफ का मतलब क्या है, ठीक है। सो और इसके बाद में क्या है, ये वैल्यू ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये इसका जो होगा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से होने वाला है, ये वैल्यू होने वाली है, ठीक है, एच एफ एच, ये है एफ एच, ओके, एफ एच है, ठीक है।
अभी मैं बोलूँ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो क्लियर हो गया, रेंज क्या होगा, तो रेंज में लिखने वाला हूँ, रेंज जो होगा मिनिमम वैल्यू क्या है एफ ए, ओके। सो यहाँ पे एफ ए, उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है एफ जी, ओके। सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी को एफ जी है ना, ग्राफ की सबसे ऊपर वाली वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं एफ जी। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी पार्ट है जहाँ पे बाइक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ पे बाई एक्स की कुछ वैल्यूज, ये वाले पोर्शन में बाई की कोई वैल्यू है ही नहीं, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, सो यहाँ से यहाँ तक लाई करने वाला है टू एफ वी, ओके। उसके बाद में यूनियन लेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एफ एच, ओके, एफ एच, एफ एच, एफ एच के बाद में, एफ एच के बाद में डायरेक्टली हम कह सकते हैं, एफ एच के बाद में डायरेक्टली हम कह सकते हैं एफ जी, ओके, एफ जी कह सकते हैं, क्यों, एफ जी इक्वल टू एफ एफ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इतने सारे गैप्स हैं, तो गैप्स में बाई की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है ही, इसका मतलब क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा गया, इससे इतने पोर्शन में बाई की वैल्यू लाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ए से एफ बी तक जाएगा, और फिर उसके बाद में एफ एच से एफ एफ और एफ जी तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका डोमेन निकाल सकते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा डोमेन का, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रब दिस, समझ में आ गया होगी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे बोलूँ ये फंक्शन है, हाँ फंक्शन है, किसी भी डोमेन की किसी भी डोमेन के लिए मैं जब बाई की जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा तो वो एक ही पॉइंट पर कट करने वाला है, इसका मतलब क्या है, ये डोमेन है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट, ओके। सो क्या करने वाले हैं, मैं सर रब करता हूँ, मान लो इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, वाई दिस इज एक्स, यहाँ पे इस तरह से, ओके। उसके बाद में इस तरह से, उसके बाद में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। अभी यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ये 2 है एक्स की वैल्यू, ये 3 है एक्स की वैल्यू, ये 4 है, ये 5, ओके, ये 6, ओके, एक्स की वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू, बाई की वैल्यू कितनी आई निकल के, मान ले रहा हूँ मैं 2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से मान रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये आया 3 निकल के, और यहाँ पे हर पॉइंट पे ये निकल के आया मान लो 2.5, ओके, 2.5 में आया, ठीक है। ये आया 7, ये आया मान लो 8 निकल के, ये 9। अभी इसमें मुझे बताना है कि ये इसमें डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज मुझे पता करना है, तो यहाँ पे मैं ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 1, यानी x की वैल्यू 1 रख दी है तो वैल्यू निकल के आई है 2, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 पे वैल्यू 3 निकल के आई है, ठीक है। एफ ऑफ 3 पे वैल्यू 7 निकल के आई है, ग्राफ से बता रहा हूँ मैं सारा कुछ, ठीक है। और एफ ऑफ 4 पे 8 निकल के आई है, ठीक है। एफ ऑफ 5 पे कितने निकल गए, 5 पे 9, ओके। एफ ऑफ 6 पे, एक्स की वैल्यू 6 पे 2.5, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर, दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन इट, ओके। सो यहाँ से मुझे सारा वैल्यूज ये इस तरह से क्लियर है, ठीक है। अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इसका डोमेन लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड कहाँ तक है, इससे 2 से 3 के बीच में तो डिफाइंड ही नहीं है, 4 से 5 के बीच में तो डिफाइंड ही नहीं है, जहाँ डिफाइंड है वही x की वैल्यूज हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डोमेन बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 to 2 में ग्राफ लाई कर रहा है, 1 to 2, ओके। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 दोनों को साथ ले लिया गया साथ में, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेता 1, 2, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह इस तरह का ब्रैकेट लगा देता, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, 1 और 2 को लिया ही नहीं गया इसमें। इसका मतलब क्या है, इसे मैं कह सकता हूँ 1 और 2 को लिया ही नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 को लिया गया है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी क्या करने वाले हैं, डोमेन 1 से 2, अभी 2 से 3 के बीच में तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं इसे लेना ही नहीं है। और 3 से 4 के बीच में फंक्शन डिफाइंड है, तो 3 to 4, ओके। और 4 से 5 के बीच में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यूनियन 5 से 6 के बीच में फंक्शन डिफाइंड है। सो इस तरह से ये हो जाएगा मेरा डोमेन।
इस तरह से मैं डोमेन निकाल सकता। अगर इसका मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर मुझे ग्राफ पता है तो मैं उसका डोमेन पता कर सकता हूँ, रेंज पता कर सकता हूँ, कुछ भी पता कर सकता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 2, ठीक है, 2 यानी कि 2, ओके। बाई की वैल्यू जो होगी वो रेंज होती है, ठीक है। ये 2 होगी बाई की मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक लाई करने वाला है, देखो हर एक बाई की वैल्यू कोई ना कोई, यहाँ से यहाँ तक बाई की वैल्यू कंटिन्यूस चलती जा रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बाई की वैल्यू 2 वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये भी वैल्यू निकल के आएगी, ये भी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो गया, कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ 2 से लेके 9 तक ये हो जाएगा मेरा डोमेन, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। ये मत सोचना कि ये बीच में गैप हो गया, इसका मतलब बाई की कोई वैल्यू नहीं होगी, बाई की वैल्यू होगी, बाई की वैल्यू इस गैप के लिए ये वैल्यू होंगी, ठीक है, इस गैप के लिए ये वाली वैल्यू होंगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू होंगी। तो इसका मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं है बाई की वैल्यूज़ में, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा डोमेन, ओके। ये हो जाएगा मेरा रेंज, ओके। I hope it is clear. There should not be any problem in it, okay. If you like my videos, then please do subscribe to my channel and share these videos to your friends so that they can get some benefit out of it. Thank you guys.